Hello, everyone. Welcome to another episode of Reality Bites with Nupur J. Sharma. I'm the editor in chief of Op India. On 18th of May 2022, Aftab Amin Poonawala strangled Shraddha Walkar, chopped her body into 35 pieces, and stored her body parts in a newly purchased fridge so he could take his time to dispose of her body parts one at a time. Reportedly, he used to look at her severed head often, hitting it even, displaying rage even after he had murdered and brutalized her. He had a history of abusing her, but Shraddha did not walk away like many victims of intimate partner violence. Her parents, who were against Shraddha marrying Aftab because he was a Muslim, were abandoned by Shraddha so she could be with the man who eventually murdered her. It was on 12th of November that the police managed to nab Aftab. Initial reports had indicated that Aftab was miffed with Shraddha for repeatedly asking him to marry her. It was only later that news emerged that Aftab was physically abusive towards her for the past 2 years. In fact, chats had suggested that Shraddha had confessed to her friend that Aftab might kill her. So far, there is no evidence that Aftab's religious identity played a role in this case in any manner. There have been no reports of forced conversion, him hiding or misrepresenting his religious identity to Shraddha at any point in time, or Aftab harboring any specific hatred from a cursory perusal of his social media accounts. However, the fact that Aftab was a Muslim has been the subject of conversation among several Hindus, with left usually, as they usually do, decrying this conversation and calling it bigoted. While the Shraddha case was being reported in the past week, here are some of the cases that Op India managed to document. On 18th November, our headline read Mehmood Khan posed as Ronak Chaurasia to trap a Hindu girl, forcibly converted her to Islam, and performed nikah, arrested. On 19th of November, a case from Bihar emerged. Already married Tawfiq pretends to be Raj to marry Julie Kumari, asks her to convert to Islam after his identity became known. Another case from 19th November in Madhya Pradesh. Muslim man arrested for forcing Hindu wife to convert to Islam. Woman says he was also harassing her for dowry. Another case on 19th November from Maharashtra. Sana lures Deepak Sonawane. Her family circumcises Deepak, extorts rupees 11 lakh, tortures him for more than 2 years. An AMM leader was also named. Now, in three cases that I just mentioned, it was the woman who was being forcibly converted to Islam. In one case, it was a man who was forcefully circumcised and was being forced to convert to Islam. While the left has decried the conversation about Aftab's Muslim identity, can one truly blame Hindus for being jaded or talking about the religious identity of Aftab? Be that as it may, it is also important for Hindus to categorize cases adequately, even when emotions run high, in order to not dilute our own cause. To that end, today, Swati Goel Sharma, journalist from Swarajya magazine, as you all know, and I will be discussing the contours of love jihad, as it is popularly called, the kind of cases that we have often seen emerge, the problems that we face while covering such cases, and what the society at large can do to mitigate the threat that is now claiming the lives of Hindu girls. So, welcome, Swati. Thank you so much for joining us. You're one of the voices and one of the few journalists uh, who have been consistently documenting cases where Hindu women have been brutalized, have been forced to convert to Islam, and have often been murdered and raped. Um, and these cases have a very, very specific religious angle to them. Now, I want to start this conversation with Shraddha. Um, Yes. as I said earlier, Shraddha's case has no specific religious angle. But why do you think the Hindu community is so fixated on Aftab's religious identity? I wrote an extensive piece today talking about intersectionality as Yes. well, but I'd love to get your thoughts on it. Why do you think Hindus are talking about Aftab's Muslim identity, even though this case seemingly so far has nothing to do with religion? Yes, Nupur. Thank you for having me on this podcast. Uh, why Hindus are angry at this case is simply because there have been a spate of cases, a lot of cases of this nature, where
men from the Muslim community have targeted Hindu women through many ways, like by lying to them about their name and religious identity, by trapping them in love, by then marrying them and forcibly converting them, or if they resist, then killing them or torturing them. So, like a lot of cases of this nature have appeared, and of course, Op India has done a tremendous job documenting them. I have personally verified more than 70 of them, you know, and so this is it. अभी ये जो केस है श्रद्धा और आफ्ताब का, इस पर क्यों गुस्सा है? क्योंकि अच्छा, ये जो चीज है ना कि इसमें स्पेसिफिक रिलीजियस एंगल नहीं है, ये रिलीजियस एंगल की डेफिनेशन भी हमको रीथिंक करनी चाहिए कि अनलेस वी हैव एविडेंस कि उसने कोई काफिर बोला किसी को, कि अगर उसने मारा तो उसने फोर्सिबली कन्वर्ट करने को कहा कहीं, और तो मतलब क्या हम तभी मानेंगे? क्या हम तब भी, या फिर हम तब भी मानेंगे जब वो उसी पैटर्न का एक केस है? फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद. लव जिहाद डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जो लेफ्ट लिबरल मीडिया जिस तरीके से उसको डिफाइन करता है, पहले उसको देखते हैं. लेट्स एनालाइज द डेफिनेशन. आई एम टेकिंग द मोस्ट रीसेंट डेफिनेशन व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय लेफ्ट लिबरल पोर्टल्स इन दिस केस टू डिसमिस द एंगल. तो उन्होंने ये कहा है कि इट्स अ हिंदुत्व कॉन्स्पिरेसी where Muslim men are luring Hindu women in drugs to convert them. So कहने का मतलब है, अच्छा ये भी इन्होंने एक नई एडिशन की है कि लार्ज नंबर हम मेंशन कर दें, क्योंकि स्मॉल नंबर ना करें, है ना, कि लार्ज नंबर हम स्पेसिफिकली मेंशन कर दें. अभी इस डेफिनेशन को अगर एनालाइज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ false definition, this is a complete lie. It's not a Hindutva conspiracy. This term was given by Christian organizations in Kerala more than a decade ago. और उन्होंने ही सबसे पहले इश्यू उठाया था. इश्यू हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उठाया था, लेकिन बिकॉज हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की तो बात कोई सुनता ही नहीं है, उनको कोई सीरियसली मीडिया लेता ही नहीं है. तो जब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया तभी वो मामला थोड़ा सा उठा. एंड व्हाट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस डिड वाज टेक वन ऑफ दीज केसेस टू कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, बिकॉज दे डिमांडेड दैट जो ये वाला जो स्पेसिफिक कन्वर्जन का केस है, जिसमें कि एक लड़की को, एक क्रिश्चियन लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ थ्रू अ लव अफेयर कन्वर्ट हुई और उसके बाद इंडिया से जाकर खुरासन चले गई इन अफगानिस्तान टू लिव अ लाइफ इन अंडर इस्लामिक स्टेट. तो जब ऐसा कोई केस आया, तब केरला हाई कोर्ट ने भी उस वर्ड को रिपीट किया. सो we have to make it very clear that this, far from being a Hindutva conspiracy, like to begin with, this came from Christian organizations. उसके बाद इसको obviously Hindus ने तो यूज किया ही है, लेकिन उसके अलावा इसको बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने यूज किया है लद्दाख में, सिख कम्युनिटी ने यूज किया है, जब हमने लास्ट टाइम कश्मीर में केस देखा था ऐसा, जैन कम्युनिटी ने यूज किया है गुजरात में, ट्राइबल कम्युनिटीज ने यूज किया है चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में, और इस तरीके से मतलब there is hardly any non-Muslim community which has not cried against love jihad. और आजादी से पहले पारसी कम्युनिटी ने भी उसके खिलाफ कैंपेन किया था. However, the specific word called love jihad had not emerged by then. तो वो मतलब वो इस शब्द का, इस फ्रेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके खिलाफ बहुत कैंपेनिंग हुआ था, क्योंकि रत्ती बाई, रतन बाई I think was her name, she was just 16 and she married an already married जिन्ना and converted to Islam. वो अलग बात है कि ये शादी बिल्कुल चली ही नहीं, और कुछ ही टाइम में रतीबाई she like the marriage broke, or I think she passed away. So when so many communities are making similar allegations, so ये एक पैटर्न बन जाता है. और इस पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कम्युनिटीज बोल रही हैं या only men in the community are alleging it. Women from the community, like women from so many Hindu women have come forward to file cases against Muslim men for hiding their identity, cheating them, and then hiding the fact that they were already married, right? So what does it mean? It means there is a whole pattern to it. And when a case like Aftab and Shraddha comes along, तो ये एक बड़ा नेचुरल है कि लोग इस बात पे गुस्सा हो जाएं कि मतलब इसमें भी यही हुआ, yet another murder. Because ये जो अकेला मर्डर है, ये तौसीफ और निकिता, यू हैव लाइक साइटेड 4-5 केसेस, बट उससे पहले और भी कितने केस हुए हैं. दिल्ली में ही नैना कौर को मारा शाहरुख ने, देन निकिता वाज किल्ड बाय तौसीफ,
And then Riya Gautam, she was also killed. And then like so many cases, I So have many, murder के endless. अकेले मैंने 25 से ऊपर cases compile Yeah. किए हैं. In fact, it's not just in India. As you mentioned, there are so many non Muslim communities in India who have Absolutely. used the concept of love jihad. It has extended to places like UK. We've seen um, the the cases of grooming jihad, of grooming gangs, subjugating Absolutely. over a Greece million में. girls. Yes. Yeah, And in fact, this word is actually being picked up by international media. We saw it how is. Yeah. some reporters from Greece use this word Yeah, to define a similar pattern in their country. And they right. were, I think they were what, Pakistani migrants? I don't remember, but they were certainly They were men from the Muslim Muslim migrants. community. I Yes. think some were from Syria, if I'm not wrong. Yes, But yes, yeah, you are right. mostly Islamic nations. Yeah. Yes. So interestingly, I completely agree with you. In fact, the left definition that you mentioned, how they define love jihad, it's interesting that they use the word droves, right? So they use a Yes. marker saying that droves of women are being converted because they want to allude to the very typical sensibility of the urban Hindu, saying कि हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमारे सामने तो ऐसा नहीं हुआ, हम किसी लड़की को ऐसे नहीं जानते जो कर रहे हैं, तो ऐसे आप बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में हो रहा है. But they're alluding to that specific sensibility where Hindu families are going to say, or the urban Hindu elite is going to say that, oh, we don't know of a woman who has gone through a similar fate, and therefore this entire thing reeks of a conspiracy theory because we can't see this pattern unfolding in our little bubbles, urban bubbles around us. So the left plays with these words very effectively to Yes. delegitimize a genuine problem where Hindu women are being targeted and brutalized. Now, to the end of defining love jihad, now I have a problem with the word love jihad itself. Swati, tell me if you agree with me. So it somehow tells us that this is a problem only when there is a two-way sort of a relationship that exists. But I'm briefly going to mention the five broad categories of crimes that we've seen by Muslim men against non-Muslim women, specifically Hindu women. And maybe it's time that we broaden the contours of this crime a little bit. So, one of the categories is where, of course, the Muslim man pretends to be a Hindu, traps a woman. Thereafter, when his real identity is revealed, either by accident or he confesses to his real identity, they force the woman to convert to Islam, failing which they murder, rape, etc. The second category is that a Hindu woman and a Muslim man get married knowing each other's identity fully well. However, after the marriage, the pressure and torture to convert to Islam begins. The third category is Hindu women being raped in the name of Islam. In fact, Swati, you had covered this case of the Kosambi gang rape, where a Oh, yes. young Hindu girl from the SC/ST community, she was being raped, she was being gang raped, and she was being videographed. And she says, "मुझे भगवान के लिए छोड़ दो," and her rapist say, "नहीं, बोलो कि मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दो." So we can't Yes. deny a specific religious angle in that case and similar cases as well. The other category is, of course, one sided obsession of Muslim men with Hindu women, where they often turn up dead. Like, as you said, Nikita Tomar, that was the one case that comes to mind, which garnered a lot of public attention. Thanks to you as well, because you covered it so beautifully. The fifth category is where Hindu women or underage girls are forcefully married to Muslim men and converted to Islam. They're either abducted and then Yes. they're raped, then married. We've seen most of these cases emanating from Pakistan, but of course, it also happens in India. The sixth category More, more is than when more than it happens in Pakistan. Right, exactly. The Yes. sixth category is when underage girls are brainwashed. Now, Swati, if you remember, there was an SIT formed to investigate the Juhi colony love jihad cases. And in that You mean in investigation, Kanpur? yeah, the Kanpur one. Yes. Yes. And in that, there were several cases where these young underage girls, 11, 12, 13, 14-year-old girls, were brainwashed by old men in their late 20s, early 30s, etc.,
They then eloped and converted to Islam and, got married. And the left media had insisted that those were consensual relationships, and therefore the SIT had found no evidence of spike in love jihad cases. But of course, I don't think 11-year-olds, 12-year-olds can legitimately consent to such grave decisions, such as running away with a man or changing their religion. I don't think they grasp the concept of religion at that age or the concept of faith. They don't know when they're being brainwashed. So these are the six broad categories that I think Hindu women are subjugated under. Now, I have a problem with the term love jihad because it doesn't really encompass all of these cases. Now, for example, the Kosambi gang rape case, there was SCST Act, there was a gang rape, rape act, which was levied, attempt to murder, and all of that. But what do you think? Is there any provision in the law that will apply to specific cases such as Kosambi rape, where religion was a part of the crime being committed? Yes, Nupur. So, see, in as far as hate crimes are concerned, our Indian laws do not define hate crimes. ये तो एक जब जब मतलब काफी हेट क्राइम्स का नैरेटिव भी पीक पर था, तब ये लेफ्ट लिबरल मीडिया का ही एक्चुअली फ्रेज था, और इसमें वो अपने हिसाब से डेफिनेशन अप्लाई भी कर देते जिस केस में उनको समझ में आता था या जिस केस में उनको सूट करता था. सो अगर हम लॉज की बात करें, हेट लॉज की बात करें, तो वो ऐसा है कि एक लॉ है हेट स्पीच, when you instigate violence or say hateful things against any other community or its revered figures, या फिर अगर किसी के मंदिर या मस्जिद में कुछ आपत्तिजनक चीज फेंक दी जाए, जैसे काउ मीट या फिर पोक फेंक दिया जाए, तो उसके अगेंस्ट लॉज हैं. और एक उसके ऊपर है कि किसी के देवी देवता, किसी के रेवर्ड फिगर, प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ बोल दिया जाए, कि 295 ए है, जो कि सबसे लास्ट में मतलब रीसेंट एडिशन है. तो अगर हम इस तरीके के देखें कि रेप केस के जो कौशाम्बी केस था, उसमें एक्चुअली कोई हेट का कोई एंगल लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि भगवान नहीं, अल्लाह अल्लाह बोलो, तो उसमें ये हेट स्पीच में भी नहीं आएगा, और उसका मतलब हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन केस के ट्रायल पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए, मेरा बहुत टाइम से मानना है कि जैसे अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट का जो एक डायनेमिक्स जो बना हुआ है कि देयर इज एन एससी एट्रोसिटी एक्ट, जो कि तुरंत अप्लाई हो जाती है इफ द विक्टिम इज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड द परपेट्रेटर इज फ्रॉम जनरल कास्ट, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है. इनफैक्ट वो इनकम्बेंट मतलब वो प्रूव करना होता है कि वो नहीं है. मतलब कई बार इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा, और देखिए ये भी एक समझने वाली बात है कि वो कब लगता है, वो क्योंकि देखिए लग तो तुरंत जाता है, लेकिन जब ट्रायल में जाता है तो किस चीज पर वो फैसला लेते हैं कि वेदर दिस एक्ट होल्ड्स और वेदर दिस एक्ट डज नॉट होल्ड. अगर परपेट्रेटर को पता होता है पहले से ही कि वो शेड्यूल कास्ट का था, तब तो वो एक्ट माना जाता है. जैसे अगर एक गांव में है और एक गांव के किसी अपर कास्ट ने किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति पर कोई अत्याचार किया, तो क्योंकि उसको पता है कि वो उस कास्ट का है, तो वो एक्ट लगेगा. लेकिन अगर कोई रोड रेज का मामला है जिसमें दो लोग बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं है, दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, और अगर ऐसा कोई क्राइम होता है, तब वो एक्ट हट जाता है, क्योंकि फिर ये सामने आता है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए ये क्राइम अगर था भी तो ये कास्ट इंस्पायर्ड क्राइम नहीं था. राइट. सो मेरा काफी टाइम से मानना है कि देयर शुड बी समथिंग लाइक अ काफिर एट्रोसिटी एक्ट. अब अगेन मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी एक्ट को यही नाम दीजिए, लेकिन ये एक एक्ट इसलिए आवश्यक मुझे लगता है क्योंकि देयर हैज बीन अ लॉन्ग लाइक अ hundreds of year old history of atrocities against kafirs by by hate inspired from they not following your religion, and they bring branded as kafirs as per doctrines. So जैसे अगर हम जैसे आपने लव जिहाद की बात करी, लव जिहाद टर्म जब आया था वो एक बहुत स्पेसिफिक कनोटेशन में आया था, क्योंकि इन लड़कियों को प्यार के द्वारा फंसाया जा रहा था, शादी किया जा रहा था, और उसमें वो कन्वर्ट हो रही थी. तो जिसने भी वो टर्म दिया, उन्होंने एक तरीके से मैरिज के रिलेशनशिप में दिया, मैरिज के संदर्भ में दिया. लेकिन अगर हमें ऐसा कोई केस नजर आता है जिसमें कि एक आदमी ने टारगेट ही उस लड़की को इसलिए किया रेप के लिए कि वो काफिर लड़की है, तो फिर आप इसको क्या मानेंगे? तब आप इसको लव तो नहीं कहेंगे, आप इसको लस्ट जिहाद कह सकते हैं अगर आपको कोई टर्म देना हो, या फिर आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक सब बेसिकली काफिर हेट क्राइम. और ये क्राइम कोई कौशंबी का क्या है कि I went there and I happened to record that video where the girl is making a statement. Otherwise,
ऐसे केसेस तो बहुत हैं। अब हर केस में हमारे पास विक्टिम की टेस्टिमनी तो नहीं हो सकती कि उसने ऐसा कहा, लेकिन करने वाले की तो यही मंशा थी। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ रियली डिस्टर्बिंग केस जिसमें एक यूपी का एक केस था, और इसकी वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है। एक आदमी, उसने एक परिवार, जब जब वो घर का आदमी घर पे नहीं था, मतलब there was this rapist, there was this man from the Muslim community, he entered barge into a house, उसमें एक महिला थी और उसके 2 बच्चे थे। तो वो पहले गया, उसने महिला के साथ रेप किया, उसने पहले महिला को मार दिया, उसके बच्चों को भी मार दिया। फिर वो जब अरेस्ट हो गया तो मीडिया जैसे बाइट लेता है ना, देयर इज अ स्मॉल विंडो जिसमें कि वो अरेस्टिंग से पहले पुलिस अलाउ कर देती है मीडिया से बात करना। तो जब मीडिया ने, रिपोर्टर ने, ये वीडियो इंटरव्यू था, उसने उस आदमी से पूछा कि आप क्यों, आपने ऐसा कैसे काम कर डाला, तो वो पूरा सुनाने लग गया। कहता है कि हाँ, वो मेरा बहुत मन कर रहा था ये सब करने का, तो मैं घर में घुस गया, फिर मैंने महिला के संग ऐसा किया, फिर मैंने उसे मार दिया, फिर मैंने बच्चों को भी मार दिया। बाद में मैंने देखा, अरे बाप रे, ये तो अपने ही रिलीजन वाले का घर था। ये उसका स्टेटमेंट है, That's वीडियो very पर मैंने interesting. पोस्ट किया Yeah. हुआ है ये। यस। सो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। और देखिए, whenever we have to see any case of any pattern of crime against kafir women, we have to consider like a hundreds or history around it. First of all, Islamic invasions, और ये मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि they have been accompanied by rapes and sexual slavery of kafir women. Sexual slavery of women here during invasion has been very well documented. और इतना एबडक्शन का डर होता था कि पर्दा सिस्टम भी कहते हैं कि उसी वजह से आया था। मतलब पर्दा सिस्टम एज जो हिंदुओं में जो उसका क्या बोलते हैं उसको हिंदू में, घूंघट। घूंघट 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 प्रथा। Yeah. उसका भी मतलब इस्लामिक इन्वेजन के द्वारा ही बताया जाता है, और बहुत उसका रीजन एक एबडक्शन वाला भी रहा था। इनफैक्ट इतना सब डॉक्यूमेंटेड है। मैंने द अदर डे आई पोस्ट द स्क्रीनशॉट फ्रॉम अ बुक कि मतलब अगर जैसे जो एबडक्शन करने वाले थे वो ऐसे पहचान करते थे कि ये लड़की ने नोज रिंग पहना है तो फिर ये इसका समुदाय की है, अगर नोज रिंग नहीं पहना है तो वो दूसरे समुदाय की है। तो ऐसे एक बार केस हुआ था कि एक आदमी एक लड़की को उठा कर लेकर गया था, ये इन्वेजन वाली आर्मी का वो आदमी था, और वहां जाके जब उसे पता चला ये तो अपनी ही समुदाय, मुस्लिम समुदाय की है, तो वो वापस आके उसे छोड़ गया कि वो तुम गलती से आ गई हो, तुम्हें नहीं किडनैप करना था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेड है। उसके बाद अगर हम पार्टीशन को भी देखें, पार्टीशन से पहले भी थोड़ा सा देखते हैं, अंबेडकर की एक बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने 1920s में जो बंगाल में कम्युनल राइट्स हुए थे उसको काफी डिटेल में लिखा है उसके बारे में। तो ही सेड, अंबेडकर सेज इन हिज बुक दैट द कम्युनल वायलेंस वाज accompanied by mass scale abductions and rapes of women. And अगर हम डेटा देखें तो मतलब 27% of all abducted women were Muslims and the rest of the abducted women were Hindus. यानी बहुत क्लियर पैटर्न है कि ज्यादा एबडक्शन वगैरह किससे हुआ। और अगर हम उसकी बात करें आजादी के टाइम पर, क्योंकि जैसे 1947 15 अगस्त से पहले ही, कई महीने पहले ये शुरू हो गया था कि मतलब जब पता ही चल गया था कि पार्टीशन होने वाला है, तो रावलपिंडी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर दंगे शुरू हो गए थे। एक्चुअली दंगे नहीं कहना चाहिए, हिंदुओं का जेनोसाइड शुरू हो गया था। और जो सबसे पहला फीचर था इसका, वो था सिख और हिंदू लड़कियों को किडनैप करना और घर पे लेकर जाना। ये इतना हो गया था कि जैसे रावलपिंडी में सिख समुदाय के लोगों ने अपनी महिलाओं को कुएं में खुद फेंकना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने खुद अपने आप को मारना शुरू कर दिया था, और ये शुरू वहीं से हुआ था। बाद में ऑफ कोर्स ये इंडियन साइड ऑफ पंजाब में भी आया, और यहाँ पर सिख कम्युनिटी ने एक्चुअली काफी रिटेलिएट भी किया। मतलब द होल एपिसोड इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी मतलब बहुत शर्मनाक है। लेकिन इस साइड भी मुस्लिम लड़कियों के साथ भी फिर वही अत्याचार हुआ था, जो कि मतलब रिटेलिएशन कहा जाता है, लेकिन कम्युनल वायलेंस, यू नो हाउ इट इट्स लाइक एवरीबडी गेट्स मैड, बट इट वाज स्टार्टेड इन द पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब। तो देखिए, तो इसका मतलब अब ये देखने वाली बात है कि जब कम्युनल टेंशन में इट्स नॉट जस्ट मेन फाइटिंग, there is a very clear pattern of targeting the women, targeting women. So इसी तरीके से हमको देखना चाहिए कि अब अभी जैसे जो हम लव जिहाद जिसको बोल रहे हैं, एक्चुअली लव जिहाद नहीं, लस्ट जिहाद की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो ये कोई पैटर्न नया नहीं है। अजमेर सेक्स स्कैंडल में एग्जैक्टली सेम ही तो देखने को मिला था, कि वो In अलग fact, बात है कि मीडिया ने उसे अधिक कवर ही नहीं किया अधिक, और आज भी in नूपुर fact, हमारे पास क्या डेटा है उसके yeah, लिए। absolutely nothing. और In fact, देखिए, the Ajmer sex scandal was far more similar to the Rotherham grooming gang sort of a phenomenon, because there were over 100 girls
who were groomed in Ajmer. Yes. And when you're talking Yes. about Kafir women, Hindu women being targeted, the Malabar genocide of Hindu is a great example. Like you said, during the run up to the Yes. partition, how Hindu Hmm. women were targeted. There's a story where a pregnant Hindu woman was raped and her fetus was lying then on the pavement on the road after the Muslim men were done with her. And we've seen Hmm. that pattern repeat over and over again. So I agree with you, Yes. but that is एंड exactly वन what थिंग I'm मोर saying. प्लीज. Yeah. अभी देखिए, अजमेर का मैंने बात किया, कश्मीर की भी हमको बात करना चाहिए. 90s में जब 1990 में जब ये कश्मीर का पूरा जिहाद मूवमेंट चला था वहां पर, तो वहां पर क्या स्लोगन किए जा रहे थे कि हमको वी वांट पाकिस्तान बट विद कश्मीरी विमेन, कश्मीरी पंडित विमेन बट विदाउट कश्मीरी पंडित मेन. तो यहाँ पर एक पैटर्न बहुत ही क्लियर है महिलाओं को टारगेट करने वाला. एंड आई हैव नो क्वाम्स इन ऑल्सो सेइंग दैट दिस होल, देखिए दुनिया में सबसे बड़े दो रिलीजन्स हैं जो कन्वर्जन यानी इवेंजलाइजेशन में सबसे ज्यादा आगे हैं, वो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. राइट, दोनों के डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं. इस्लाम में उनको दावा ग्रुप्स कहा जाता है, क्रिश्चियंस में उनको यू नो एज एन क्या बोलते हैं उनको, मिशनरीज, मिशनरीज कहा जाता है क्रिश्चियंस में. लेकिन दोनों का तरीका बहुत डिफरेंट है. एंड वी हैव टू सी दैट देयर इज अ पैटर्न. और इसीलिए देखिए, इसीलिए क्रिश्चियन लड़कों के ऊपर तो कभी आरोप नहीं लगा कि आप लड़कियों को फंसाकर उनसे शादियां करते हो, क्योंकि मिशनरीज का कन्वर्ट करने का तरीका एकदम अलग है. दे यूजुअली टारगेट फैमिलीज, दे यूजुअली टारगेट ग्रुप्स, या पूरा का पूरा गांव टारगेट करते हैं. और लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज का, अगर आप देखें, कि वो महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को कन्वर्ट करके इस तरीके से कन्वर्जन नहीं करते हैं. एंड विच इज व्हाई दिस वर्ड इंटरफेथ इज आल्सो मिसलीडिंग, बिकॉज इंटरफेथ से ऐसा लगता है कि हिंदूज आर अपोज टू ऑल काइंड ऑफ इंटरफेथ. एक बात बताइए, आज तक किस हिंदू ने सिख लड़के के साथ शादी करने के लिए हंगामा मचाया है? किस किस हिंदू ने क्रिश्चियन लड़कों के साथ करने में हंगामा मचाया है? किसने आज तक जैन, बुद्धिस्ट किसने किया है? कभी नहीं. देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ men from one category of community जिनके अगेंस्ट ही सब बोल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि their दावा mission has a very clear way of spreading conversion through women. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरफेथ टर्म इज मिसलीडिंग. इंटरफेथ में नहीं है ये, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम विमेन, मुस्लिम मैन एंड नॉन मुस्लिम विमेन प्रॉब्लम. And which is Yeah. why it's all over, the pattern is same all over the world. So when we do talk about this all-encompassing law, there's another point which was very interesting that you brought up about SC/ST Act. Now, the basis of the SC/ST Act is historical oppression, as we've already established with with non-Muslim women as well. There is a precedent and there is a historical context of oppression as far as the Islamic community is concerned. Now, there is an assumption, and it's not necessarily a bad assumption, that the intersectioning identities of a Dalit and a woman puts that individual at a greater risk of a crime being committed against her. It's essentially called intersectionality, Yes. where because Yes. a woman is a woman, and on top of that, she's a Dalit woman, she is far more vulnerable to a crime being committed against her, specifically by upper caste Hindu men, which is why we see media mention the identity of the Dalit victim over and over again, even when there is no caste angle, particular caste angle in the case. The media will mention that it was a Dalit woman because of the underlying faith that she was at a greater risk of that crime being committed against her because of her intersectioning identities of a Dalit and a woman. And the same sort of a principle applies to Hindu women as far as Muslim perpetrators are concerned. The intersectioning identities of a individual being a woman and a Hindu at that puts her at a greater risk of a crime being committed when the perpetrator is a Muslim because of the historical oppression that we have observed by Muslim men against Hindu women. And therefore, I agree with you that there should be a specific law that deals with any sort of religiously motivated crime or a crime that has a religious undertone to it when perpetrated by a Muslim man against a Hindu woman. In fact, I would go a step ahead.
and say that it should also apply when a crime is committed against a Hindu man, because we have seen so many Hindu boys and so many Hindu men being hacked to death by the family of his Muslim girlfriend or Muslim wife. We've seen the case of Ankit in Delhi, recently the case in Maharashtra that I mentioned earlier, where he was forcibly circumcised, he was extorted, and he was tortured for 2 years. So it's not just Hindu women, even though Hindu women are overwhelmingly targeted by Muslim men, but even the Hindu men who are being tortured and hacked by the Muslim woman's family. So I think that law that you speak of, that all encompassing law, which is equivalent to an SC/ST Act, should perhaps also apply to the family of the Muslim girl um, who ends up, torturing, forcefully converting, or even murdering the Hindu man in the question, in the equation. What do you think about that? सो नुपुर यू जस्ट मेंशन इंटरसेक्शनैलिटी. मैं इसमें ये कहूंगी कि देखिए जो इंडिया में अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड क्राइम्स की बात करें तो वो है जैसे कास्ट बेस्ड क्राइम्स, जेंडर रिलेटेड क्राइम्स और माइनॉरिटी क्राइम्स. अच्छा, इसमें क्या है कि बाकियों के लिए तो फिर भी एक कंसेंसस है कि यस विमेन आर ओवरवेलमिंगली द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स. इसी तरीके से ये भी इस पर भी एक लार्जली कंसेंसस है कि पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट आर ओवरवेलमिंगली विक्टिम्स ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस. ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि माइनॉरिटीज आर ओवरवेलमिंगली विक्टिम्स ऑफ मेजॉरिटी क्राइम्स. अब इस तरीके से देखिए कि अगर ये जो माइनॉरिटी एक्ट है, इसका आज तक कोई डेटा कभी पब्लिश नहीं हुआ. ये एकदम एक विम पर एक तरीके से आ गया और इसमें और इसीलिए इस पर एक पीआईएल ऑलरेडी फाइल हो रखी है और कोर्ट में इस पे ट्रायल भी चल रहा है कि इस एक्ट को हटाया जाए. इसका एक्चुअली कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि इसमें जो अंडरलाइंग अजम्पशन है कि माइनॉरिटी के व्यक्ति पर इसलिए एट्रोसिटी हो रही है, तो देखिए कहां पर, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी जैन कम्युनिटी ने कोई ऐसा कुछ प्रोटेस्ट किया हो कि हम पर बहुत अत्याचार हो रहा है. अगर हम उसकी बात करें तो यस देयर हैव बीन सिख एंड हिंदू वायलेंस, बट उसको भी हमको वो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मूवमेंट पंजाब से शुरू हुआ था और ये खालिस्तान मूवमेंट बेस के रूट्स हैं. एंड द खालिस्तान मूवमेंट वाज अकम्पनीड बाय लार्ज स्केल मर्डर्स ऑफ हिंदूज, जस्ट इन फैक्ट विदाउट एनी प्रोवोकेशन, राइट. तो इसी तरीके से अभी क्या है कि ये अब सो ये काफिर एक्ट ऑब्वियसली, मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके का डिस्कोर्स है उसमें मतलब ये चीज आती ही नहीं है. इनफैक्ट काफिर हेट को हमेशा डिनाई किया जाता है. काफिर का अगर आपको याद है बरका दत्त एक बार एक इंटरव्यू कर रही थी एक टेररिस्ट को, मतलब वो बेड पे था, मिलिटेंट कह लीजिए, अगर टेररिस्ट नहीं कहना है तो. कश्मीरी स्टोन पेल्टर. हाँ, ओके फाइन, सॉरी, नॉट अ टेररिस्ट लाइक विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ही वाज अ स्टोन पेल्टर. He was a lone wolf terrorist. We can call him that. Okay, let's call him son of a headmaster. Anyway, so she asked him, why are you fighting? So he says इस्लाम के लिए. तो बरका दत्त को उसको ठीक कर रही है कि अरे ये कैसे, आप बोलो कश्मीर के लिए. अरे जब वो अपनी बात खुद कर रहा है तो why are you correcting him or why are you putting words into his mouth? तो इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा मेंशन भी होता है तो मीडिया उसको छुपा लेता है और लार्जली जो डिस्कोर्स होता है वो उसको छुपा लेता है. और ये आज से नहीं चल रहा है, ये आजादी के पहले भी जो सेक्युलरिस्ट जो थे, जो आज सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी. तो वो शुरू से ही उसको दबाने का काम कर रहे हैं. अगर आप अंबेडकर का काम पढ़े, खासतौर से पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का भी नाम लिया था, वो तब कुछ नहीं बोलते जब हिंदू लीडर्स के मर्डर होते हैं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम और बहुत सारे ऐसे. लेकिन वो दूसरे तरीके के एट्रोसिटी, मतलब दूसरे ऑपोजिट कभी हो जाए तो एकदम उसको इश्यू बनाते हैं. इस पर काफी लिखा हुआ है. तो ये क्या है कि रियलिटी हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि काफिर हेट जो है ये कोई इंडिया स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया को हमको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि अकेले जो इंडिया में जो कम्युनल प्रॉब्लम है ये अकेला इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पूरा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सिर्फ 75 साल हुए हैं पार्टीशन को, और पार्टीशन भी मतलब कोई फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट पार्टीशन नहीं था, और अभी भी एक मतलब आराम से लोग कूद कर आ जाते हैं. बांग्लादेश और जो इंडिया की जो पार्टीशन है वो एक्चुअली
वो एक्चुअली ऐसे ग्राउंड में ही खिंची हुई है। तो इंडिया और पाकिस्तान में फिर भी एक नेचुरल बॉर्डर है काफी जगहों पर, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो कोई नेचुरल बॉर्डर भी नहीं है। वहां पर ऐसे तार कूद कूद कर आ जाते हैं लोग, राइट। सो इस तरीके से देखिए कि पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है। और काफिर हेट एक 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 तरीके से जो यहाँ पर भी जो एट्रोसिटीज होते हैं उनको शह मिलती है बाहर बैठी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बाहर बैठी ग्रुप्स के द्वारा। जैसे अगर यहाँ पर इतने सारे जो अटैक्स होते हैं, लोन वुल्फ कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन दे आर सो मेनी टाइम्स वी सी दे आर फंडेड फ्रॉम पाकिस्तान और ट्रेंड देयर। तो क्या है कि ये मतलब अगर आपको इंडिया के संदर्भ में ये लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो इंडिया हिंदू मेजोरिटी में, यहाँ पर कैसे काफिर एक्ट आ जाता है, तो आप इसको कंसिडर कीजिए कि अकेला इंडिया का प्रॉब्लम है ही नहीं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रॉब्लम विद ऑफ हिंदू सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का तो ये पूरा प्रॉब्लम है ही। और ये इतना अधिक है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो हिंदू बचे ही नहीं है, और यहाँ पर भी है तो उसी प्रॉब्लम का शिकार है, क्योंकि वो बाहर मतलब इन दोनों कंट्रीज से भी उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सिर्फ इन दो कंट्रीज से नहीं मिल रहा, और भी जगह से बहुत मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बीजेपी की नुपुर शर्मा ने एक कॉमेंट किया, एंड देखिए टीवी कॉमेंट के ऊपर कतार जैसे देश और कितने सारे देश उसके ऊपर बोलने लग गए। देन हाउ कैन यू क्लेम यू आर एन एथनिक माइनॉरिटी in this country when you actually have the support of so many such global support? अगर आपके पास इतना है तो आप ऐसे एथनिक माइनॉरिटी करके ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि बस हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बस इसी देश तक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, राइट। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि काफिर हेट इंस्पायर्ड। और देखिए दूसरी तरीके की जो हेट है वो तो एक तरीके से सिर्फ इसलिए हेट है क्योंकि लोगों ने पार्टीशन देखा है तो उन्हें उस चीज का गुस्सा है, मतलब उन्हें पता है कि क्या हुआ था। जिसको हिस्ट्री पढ़ी है उसको गुस्सा है। लेकिन काफिर हेट का जो कंसेप्ट है ये डॉक्ट्रिन में है, राइट, ये बुक्स में है, ये एक्चुअली रिलीजियस प्रीचिंग का पार्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि इनके रिलीजन का पार्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे देखिए जो भी रिलीजियस बुक है या जो भी प्रॉफिट की सेइंग्स हैं, हमको नहीं पता क्या एग्जैक्टली था। हमको ये पता है कि मौलाना क्या प्रीच करते हैं, हमको ये पता है कि आज के जो बुक्स हैं उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, राइट। उसमें तो भर भर के हेट है ही। आप फतवा देख लीजिए, दिवाली नहीं विश कर सकते, होली नहीं विश कर सकते, और किसी और अगर आपने गलती से जय श्री राम किसी ने कह दिया तो फिर उसका तो निकाह ही टूट जाता है। पीछे एक बिहार के पॉलिटिकल लीडर था, उसने ऐसे जय श्री राम बोल दिया, सिर्फ इतना ही बोला, तो उसके ऊपर तो फतवा लग गया कि तुम अब इस्लाम में नहीं रहे, अब तुम्हें दोबारा से इस्लाम में कलमा पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारी जो वाइफ है उसका फिर से निकाह करना पड़ेगा। हलाला भी शायद हुआ हो सकता है मीडिया में ना आया हो क्योंकि वैसी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन दोबारा से निकाह तो तभी होता है ना। तो ये समझ लीजिए इतना सारा काम। और उसके अलावा हम सेक्सुअल क्राइम्स भी देखते हैं इतने ज्यादा, और इतने ज्यादा हम मर्डर्स, जनरल मर्डर्स भी देखते हैं। अभी दिल्ली में जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसमें सब चार्जशीट्स में तो लिखा ही हुआ है ना कि काफिर काफिर कहकर मारा गया था। आपने भी पढ़ी है नुपुर So, चार्जशीट? Swati, so yeah, absolutely. So since you brought up Delhi riots, I think it brings us beautifully to a point where, love jihad, even though I hate using the term, but love jihad is a phenomenon. Or let's say sexual crimes or any sort of crime against Hindu women, specifically by Muslim men, owing to their religious hatred, is often dismissed, saying that there is not enough statistic to prove that this is a pattern, even though we at least cover, you and I, Swarajya, Op India combined, we are at least covering 2-3 cases every single day on an average. Yes. But it is still alleged that there is no, data to back our claims up. And therefore, it is often dismissed as a conspiracy theory. In the Delhi riots, for example, it was beautiful. It was absolutely mesmerizing to watch how an anti Hindu planned, conspired violence was turned into an anti Muslim pogrom globally. We all saw that happening Yes. right in front of our eyes. The charge Yes. sheets being dismissed right in front of our eyes, the video evidence being dismissed right in front of our eyes. The pattern since December 5th, 6th, 2019, leading up to the February 2020 violence being Yes. dismissed right in front of our eyes. Slogans like Jinnah Wali Azadi, Hinduon ki kabar khudegi, etc., everything Yes. whitewashed right in front of our eyes to say it was an anti-Muslim Yes. program. So we know how the left does it. However, I also blame our side for it, and maybe it is
a problem with numbers, in the sense there are not too many of us in this field doing this work, and therefore it sort of keeps getting left behind a little bit. But there is an allegation that there is a lack of statistics, proven data, to say that every year so many Hindu women are being targeted in such categories of cases. So how do you think we solve that problem? Yes, Nupur. Glad you brought that up. The data, the data, the question of data. So first of all, नूपुर जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं तुमसे कि 1.6% अगर टोटल केसेस में का कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइम 1.6% है, would you call it epidemic proportion? Would you call it a very high level of crimes? Like अगर टोटल केस का 1.6% है कोई क्राइम, usually you would say no, right? मतलब 1.6 को आप इतना सीरियसली नहीं कहोगे. We wouldn't say it's an majority. Yes, yes. पता है किसका डेटा है? ये कास्ट बेस्ड क्राइम्स का डेटा है पिछले साल का. ऑफ ऑल द एफआईआर्स फाइल्ड इन इंडिया, दिस वाज द प्रोपोर्शन ऑफ कास्ट बेस्ड क्राइम्स. अब ये देखिए कि इंडिया का जब बात आता है तब ऐसा पिक्चर आता है कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड वायलेंस के अलावा कुछ होता ही नहीं है, राइट? सो और जबकि नंबर मतलब अगेन सी ये एक स्टैटिस्टिकल बात है कि किसको आप बड़ा ज्यादा मानते हो, किसको हम कम मानते हो, ठीक है, इसमें हम नहीं जाएंगे. लेकिन जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा वर्ल्ड वाइड चलता है उस हिसाब से तो ये फिगर हमको नहीं दिखाई देता है, उस हिसाब से तो स्टैटिस्टिक नहीं है. नाउ कमिंग टू द सो कॉल्ड लव जिहाद और फोर्स कन्वर्जन और लस्ट जिहाद और व्हाटएवर. सो इस थोड़ा सा लेट्स जस्ट गो बैक 2 years बिहाइंड. आपको याद है एक पूरा काउ लिंचिंग का एक बहुत बड़ा नैरेटिव, ग्लोबल नैरेटिव हुआ था. उसमें ये कहा गया था कि इंडिया में लार्ज स्केल मुस्लिम वायलेंस हो रहा, मतलब वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स हो रहा है गाय के ऊपर. आपको पता है उसका स्टैटिस्टिक था क्या? याद है? 2012 से 2017 तक, यानी फ्रॉम 2012 टू 2017, 25 people had died of cow lynching attacks. Like 25 Muslims had died of cow lynching attacks. ये डेटा था. कितने सालों में? 5-6 सालों में 25 डेथ्स. और इस फिगर को लेकर क्या कुछ नहीं हुआ. इसको लेकर एक लॉ गया राजस्थान में, इसको लेकर पूरा ग्लोबल नैरेटिव बना, यहाँ तक कि काउ स्लॉटर को लीगलाइज किया जाए इसकी भी मांगे उठने लग गई. इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मांगे, मतलब इसके लिए आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखे गए. अगर आप काउ लिंचिंग सिर्फ इस तरीके से, इसके लिए विकिपीडिया पर अलग से पेज है, इस पर इतने प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए थे इंडिया में. और अगर आप याद करो तो मतलब अगर आप अभी भी गूगल पे जाएंगे तो आपको मतलब 25-30 पेजेस आपके चले जाएंगे और वही आता ही रहेगा कि काउ लिंचिंग, काउ लिंचिंग, काउ लिंचिंग, राइट? एंड हाउ मेनी केसेस? 25 मर्डर्स ऑफ मुस्लिम मैन. और जबकि ये जो लिस्ट है 25 की, ये भी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि ये सारे अनडिस्प्यूटेड हेट क्राइम्स हैं. नहीं, इसमें ऐसे भी क्राइम्स हैं, वो तो लिखने वाले कुछ भी लिख दें, लेकिन ऐसे इसमें कोई प्रूफ नहीं है. मतलब 1 या 2 को छोड़कर ऐसा किसी में कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब देयर इज एविडेंस कि इसमें ये हेट क्राइम था ही था. हो सकता है किसी गांव वाले ने अपनी काऊ बचाने के लिए ही मारा हो, और हो सकता है वो किसी गलती से ऐसा हो गया हो. Now let's talk about data. तो अगर आप इतने 5-6 साल में 25 की फिगर करके इतना नैरेटिव करते हो, then why do you need data? आप 25 की बात करते हो, हम आपको 26 केस दे देते हैं. That should silence you, right? That should silence all these left liberals, क्योंकि हमने तो उससे ज्यादा डेटा दे दिया. और चलिए आपका तो डेटा वेरीफाइड भी नहीं था, हम तो आपको पूरा वेरीफाइड डेटा देंगे जिसमें कि जो ये एलिगेशंस हैं ये एफआईआर में, कोर्ट ऑर्डर में किसी ना कहीं तो होंगे. इसीलिए डेटा की बात करने से पहले सबसे पहले काउ लिंचिंग का तुम ये बताओ कि काउ लिंचिंग का 25 केस के ऊपर इतना बड़ा हल्ला क्यों मचाया था, अगर किया था तो, राइट? और अगर तुम उसको सही मानते हो तो यू हैव नो राइट टू आस्क एनीबडी फॉर लव जिहाद डेटा. और अगर आप डेटा की बात करें तो देखिए किसी ने सरकार तो ये डेटा रखती नहीं है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट रेप का और उसका सेक्सुअल मोलेस्टेशन वगैरह का डेटा मेंटेन करती है, रिलीजन, परपेट्रेटर और विक्टिम के रिलीजन के हिसाब से तो करती नहीं है. इनफैक्ट गवर्नमेंट हेट क्राइम्स का भी डेटा मेंटेन नहीं करती, यानी अगर विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स की आइडेंटिटी के बेसिस पे भी नहीं करती. द ओनली काइंड ऑफ कम्युनल वायलेंस दैट द गवर्नमेंट मेंटेन्स इज कम्युनल राइट्स. और वो भी इतना मतलब इतना एक तरीके से इतना बड़ा जोक है ये कि उसको पुलिस बहुत प्ले डाउन करती है. यानी पिछले साल शायद या पिछले से पिछले साल यूपी में सिर्फ एक राइट बता दिया उन्होंने. इतना बड़ा, मतलब हम लोग इतने, आप तुम और मैं मिलकर इतने सारे केसेस मतलब राइट के कवर कर लेते हैं, वो कहते हैं एक राइट. ऐसा होता है क्या? बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज पुलिस हमेशा ये दिखाना चाहती है कि वी मेंटेन पीस, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है.
तो अब इसीलिए जो डेटा की बात हुई, इसलिए मैं इसको बहुत सीरियसली लेती नहीं हूँ, ऑल दीज क्वेश्चंस कि वेयर इज द डेटा, वेयर इज द डेटा। अरे मतलब तुम लोग वो हो जो 25 केस की बेसिस पर इतना हल्ला किए थे, तो कौन केस क्यों मांग रहे हो हमसे डेटा? दूसरा, अभी डेटा की आवश्यकता है क्या? वी शुड ऑल्सो आस्क आवरसेल्व्स कि प्रॉब्लम इतना अधिक है कि जस्ट बाय एनेक्डोटल एविडेंस, जस्ट बाय कैजुअल ऑब्जर्वेशंस इतने केसेस आ रहे हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल। And all the pattern what we are witnessing is same as Pakistan and Bangladesh. तो हमको क्यों डेटा चाहिए? I mean, do we want to solve it, or do we want to spend so much time in gathering a data which will satisfy these left liberals? अब देखिए, काम तो ऐसा है कि अब यूपी गवर्नमेंट ने लॉ लाया, उन्होंने तो नहीं वेट किया, बिकॉज दे न्यू द पैटर्न इज देयर। सो लॉ आ गया तो उसको लड़कियां यूज भी कर रही हैं। लड़की, इतने सारी लड़कियों ने उस लॉ को यूज करके उनके ऊपर केस फाइल किए हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर, राइट? तो क्या है कि ये डेटा डेटा वाला एक तरीके से एक लिबरल ट्रैप मैं इसको मानती हूँ, कि आप उसमें उलझा कर रखो कि जैसे सामने आपको केस दिख रहा है उसकी बात मत करो। निर्भया केस हुआ था अनुपुर, तो एक ही केस के ऊपर इतना हल्ला हुआ था ना कि उसके ऊपर लॉस चेंज हो गए थे। तब तो ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे जब तक 100 केस नहीं आएंगे सिमिलर नेचर के तब तक हम नहीं करेंगे। द थिंग इज, उस केस ने सबको शॉक किया था, एंड देन नोबडी आस्क्ड फॉर डेटा, क्योंकि सबको पता था कि देयर ऑलरेडी अ पैटर्न ऑफ जेंडर क्राइम्स, सेक्सुअल क्राइम्स। इसीलिए ऐसे वाले जो केसेस हैं, जिसको हम लव जिहाद के केस कहते हैं, उसके ऊपर भी सिमिलर अप्रोच क्यों नहीं रखते लोग? श्रद्धा और आफ्ताब की डिटेल्स अलग हो सकती हैं, लेकिन निकिता तौसीफ की केस की तो साफ साफ थी ना। निकिता और तौसीफ केस में क्या था कि एक 22 साल की लड़की थी निकिता तोमर, यहाँ फरीदाबाद की रहने वाली, कॉलेज स्टूडेंट थी। तो एक लड़का तौसीफ जो कि कांग्रेस रिलेटेड फैमिली से आता है, उसने पहले तो उसको मतलब एक्चुअली ही वाज फोर्सिंग हर टू बी फ्रेंड्स विद हिम, बेसिकली हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। और निकिता नहीं मान रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली रिलीजन अलग है, उसको भी पता था कि मतलब ये नहीं अलाउड है। बट ही केप्ट ऑन परसुइंग हर डिस्पाइट हर नो। और उसके बाद एक दिन उसने किडनैप भी किया था उसको, और बाद में मैंने मतलब केस कवर किया था। किडनैप इसलिए किया था कि उसको तौसीफ को ये लगा कि अगर मैं एक दिन इसको अपने पास रखूंगा, कहीं भी घर से दूर रखूंगा, तो ये इसके और कहीं शादी के लायक ही नहीं रहेगी, ये इसलिए ऐसा किया था। तो और उसके बाद वो केस तो चलिए खत्म हो गया था, क्योंकि लड़की को मतलब उसका पिताजी किसी तरीके से वापस ले आए थे अपने घर में। लेकिन बाद में उसने उसको गोली मार दी, तौसीफ ने, कॉलेज के बाहर। तो फिर निकिता के फादर ने, निकिता के फैमिली ने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था, जिसपे लिखा हुआ था कि निकिता तोमर वॉज किल्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट एंड मैरी तौसीफ। इसकी फोटो मैं खुद खुद लेकर आई थी, और मैंने बहुत हैरान हुई जब मैं वहां पर गई, क्योंकि इतना बड़ा बैनर अगर पिताजी ने लगा रखा है घर के सामने, तो किसी मीडिया ने उसको क्यों नहीं बताया? Like, why was it that only I took a photograph and no one else did? किसी किसी ने भी नहीं उसको दिखाया। वो काफी मतलब ब्लेटेंट था, राइट? तो उस एलिगेशन को नहीं दिखाया। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको इस आफ्ताब और श्रद्धा केस में थोड़ा शक हो रहा है कि इसके ये पता नहीं रिलीजियस है कि नहीं, तो वो तो साफ साफ रिलीजियस था, तो उसमें क्यों नहीं मान लेते? लेकिन जिसको डिनाई करना Hundreds है of वो such डिनाई करते cases. रहेंगे, एंड वी रियली शुडंट Yeah, बॉदर अबाउट एनीबॉडी आस्किंग डेटा कहाँ है, डेटा कहाँ है। yeah. In fact, in Uttar Pradesh, since you हम्म, mentioned Uttar Pradesh, in 2 years of the anti-conversion law, the Yogi हम्म, government has registered 291 cases of illegal conversions in love jihad, and they have arrested 597 perpetrators thus far. This is just हम्म, in 2 years. And the problem is, I agree with you. Sitaram Goel had famously said in one of his books, Sitaram Goel and Ram Swaroop had written that book on temples and what happened to them, Hindu हम्म, temples. And in that book, he was talking about Ram Janmabhoomi, and it had said they had said that it's like a trap. The left is हम्म, going to continue asking you for evidence, and when you give them the हम्म, evidence, they're going to say that the evidence is not adequate. They'll keep asking you questions. They'll ask you for more evidence, and then you provide them more evidence, and it's not going to end anywhere because they have already made up their mind to not believe yes, you. Otherwise, what is happening in Uttar Pradesh, after almost 600 perpetrators being arrested, there should be हम्म, absolutely no question that a pattern हम्म, exists. However, Swati, even though I agree with you that data is not particularly necessary because it's literally all around us and documented every हम्म, single yes, day, I also think that it is our collective failure as a Hindu society to create
the sort of outrage or awareness of our own persecution, and I don't think we have been able to do that historically since the beginning of our own persecution, and therefore we seem to be failing to convince even section of our own community that our Hindu daughters, our Hindu girls are being brutalized on a regular basis. Now, of course, the problem is that the left and Islamists have a global nexus because they have a lot of synergy as far as their ideology is concerned, whereas Hindus are basically fighting their own battle with no global ecosystem because the indigenous people often disagree with most things globally. So the Hindus will also have a problem with Christian conversion, but the Christian nation right wing is going to have a problem with Hindus, and therefore we've never really created a global alliance, even like a common minimum program between the non-Muslims globally. So I think even though we know that the pattern exists, my question is, what does the Hindu society do to create awareness and to be taken seriously when our own daughters are being raped, molested, murdered, forcefully converted to Islam? There seems to be no end. I mean, I understand that the family has to be more sensitive. They have to leave the door open for their girl to come back and say that I'm sorry, I messed up, please help me, please save me from this situation. I also understand that our police has to be sensitized, there has to be a law, but all these are long term projects. What does the Hindu society do to be taken seriously? And what do we do to save our girls? Other than, of course, taking Bajrang Dal and VHP organizations like them far more seriously, because they are the front line, the first line of defense. When Hindu girls fall into such traps, they always come to the rescue, even before the state administration takes you seriously. But what do you think? What are your thoughts? What does the Hindu community do collectively? या से नूपुर, जैसे अगर हम अपना हिस्ट्री देखें और बहुत पीछे भी ना जाएं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री देखें जिसको हम इंडिपेंडेंस के आसपास का, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन हुआ था, ये भी आप इतने सारे बच्चों से पूछोगे तो उनको नहीं पता होगा, ठीक है? मतलब ऐसे कर्सरली पता होगा, लेकिन द फैक्ट दैट बेसिकली द लाइक मतलब ब्रिटिश का यहाँ से जाने से बड़ा इवेंट पार्टीशन था और इतना ब्लडशेड हुआ था, ये सब भी लोगों को नहीं पता है। तो क्या है कि और भी बहुत कुछ हुआ था, जैसे एक शुद्धि मूवमेंट 1920s में बहुत बड़े लेवल पर चली थी, और अगर आप आज पूछें तो लोग ऐसी बात करते हैं, नहीं हिंदू बस पैदा होता है, हिंदू बनता नहीं है, हिंदू के कन्वर्ट नहीं होता। मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण बात आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएंगी, जिनको ना हिस्ट्री का पता है, ना जिनको अपने ही रिलीजन के अंदर जो बड़ी बड़ी रिफॉर्म मूवमेंट्स, मतलब रिफॉर्म से मेरा मतलब है कि एक सोसाइटल रिफॉर्म्स मूवमेंट इस तरीके से जो हुई हैं, उनको उसी का नहीं पता है। तो आई रिमेम्बर कि जब सबसे पहले मैंने घर वापसी पर एक रिपोर्ट लिखी थी कि वो है क्या और किस तरीके से आजकल होता है, तो लोग ऐसे हैरान हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हिंदू तो सिर्फ पैदा होता है, फिर उनकी कास्ट क्या होती है? सब लोग ऐसे लिखते हैं, अच्छा अगर हिंदू बन जाते हैं तो उसकी कास्ट क्या होती है? फिर मैंने पूरा एक अलग आर्टिकल लिखा कि मतलब व्हाट क्या होता है फिर अगर हिंदू बन, कास्ट क्या, कास्ट का क्या होता है? तो ये सब चीजें देखिए, अब क्या है कि लोगों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ कि जब अधिकतर जो सोसाइटी है वो एंटरटेनमेंट की गुलाम है, और शायद इसी विचार से मैंने और संजीव नेवर ने जेम्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्ट भी किया था, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम एक जनरल लाइफस्टाइल देखें तो पहले टीवी देख लिया, कोई फंक्शन है तो बॉलीवुड के गानों पे नाच लिया, अगर कहीं भक्ति का भी कोई रिलीजियस प्रोग्राम भी है उसमें भी बॉलीवुड सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड भजन टाइप के हो गए, उन्हीं पर कर लिया उसमें। तो और अगर भक्ति भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, मतलब उसमें उसमें कोई कम्युनिटी सोसाइटी की कोई बात नहीं है, राइट? इट्स अ वन टू वन कनेक्शन। तो कहीं भी लाइफस्टाइल में वो चीज है ही नहीं कि आपको हिस्ट्री या फिर आने वाले फ्यूचर इनके बारे में हल्का सा भी कोई कॉन्शियसनेस हो। ये अधिकतर ही परिवार से भी नहीं आता है, क्योंकि परिवार में भी ऐसी बातें नहीं होती हैं, सिर्फ इतनी ही होती है ना कि
कमाई को लेकर हो जाएंगी, करियर को लेकर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि अब हर परिवार में यहाँ पर कम्युनल बातें होनी शुरू हो जाएं या फिर यही अलार्म क्रिएट हो जाए, लेकिन होता क्या है कि अगर आप ये नहीं भी करते हो तो ये वही क्लासिक शुतुरमुर्ग वाली एक एक्चुअली बात है, क्योंकि अगर इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। तो अगर आप अपना काम करते भी रहेंगे तब भी अगर भगवान ना करे लेकिन दंगे हो गए तो आप फंसोगे। नॉर्थ ईस्ट में मेरे भी परिवार वाले रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और जिस दिन जब ये शुरू हुआ था तो दे वर ऑल्सो कॉट अनअवेयर्स। वहां पे उनकी वो काम धंधा करते हैं वो लोग, और फिर घरों में रहे थे। तो क्या होता है कि दीज थिंग्स अफेक्ट यू, और जैसे जैसे ये बढ़ेंगी अफेक्ट होगा। अभी तक होता क्या है कि गांव वगैरह में ये होती हैं इस तरीके से इंटर कम्युनिटी टेंशन जैसा भी है, लेकिन गेटेड सोसाइटीज में भी, गेटेड कम्युनिटीज में नहीं होती हैं, क्योंकि वो मतलब बाय डेफिनेशन वो एक तरीके से आइलैंड्स तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, है ना। और अधिकतर अगर आप देखें तो मीडिया पर्सन भी इन्हीं लोकेलिटीज से ही आते हैं। इंग्लिश मीडिया का जो अधिकतर रिक्रूटमेंट होता है वो कहाँ से होता है? वो एक तरीके से एलिट सोसाइटी से ही होता है, क्योंकि इंग्लिश अभी भी एक बहुत एलिट ग्रुप ही बोलता है। इट्स अ रेयर स्किल इन इंडिया स्टिल, मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं इसको। अच्छा, हिंदी इसीलिए नूपुर हिंदी मीडिया का कवरेज इंग्लिश मीडिया से इतना अलग होता है, क्योंकि हिंदी मीडिया के रिपोर्टर्स एक्चुअली वहां से आते हैं जहां ऐसी चीजें उन्होंने बचपन से देखी होती हैं, ठीक है। लेकिन लाइक यूपी और बिहार में से कितने सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडिया का आप अधिकतर देखो कि मेट्रो सिटीज वगैरह में ही होता है, और वहां उनके एडिशन भी मेट्रो सिटीज में ही होते हैं, क्योंकि अगर आप स्मॉल सिटीज या गांव में निकालोगे तो वहां पढ़ेगा कौन इंग्लिश में। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने मीडिया की बात करी। परिवार में भी मुझे लगता है कि परिवार अधिकतर, मैं अगर मुझसे बात करें तो मुझे एंटरटेनमेंट में ही सब लिप्त लग रखते हैं। सारे बैठकर एंडलेसली वो रियलिटी शो जिसमें गाने बजाने वाले होते हैं वही बैठकर देखते हैं, और जैसे मैंने कहा फंक्शन में भी यही होता है। तो मुझे आसपास कहीं, मतलब मैं अगर कोई भी फैक्ट अपने परिवार में भी अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कुछ भी ऐसा फैक्ट बताती हूँ तो सब ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था। मतलब कितनी हैरानी की बात है। मैंने आज ही एक स्टोरी मतलब एक पुट की थी कि तबस्सुम इनकी हाल ही में, मतलब शी पास्ड अवे, शी वाज अ रियली ऑसम टीवी होस्ट, सच अ स्वीट वुमन, यू नो। उनकी माँ असगरी बेगम थी। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद से कहकर कहा था कि मेरी शुद्धि मतलब मुझे करो, मुझे हिंदू धर्म में लाओ। और फिर ऐसा करने के लिए वो अपने घर से भागी थी। उनके पिता मौलवी थे, और फिर स्वामी श्रद्धानंद ने उनका शुद्धि किया था और उनका नाम शांति देवी रखा था। और इतना तक हुआ था कि जो उनके परिवार वाले थे असगरी बेगम के, उन्होंने केस कर दिया था स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर, और बहुत सारी रैलीज वगैरह भी निकली थी। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि नहीं, मतलब मेरे जीते जी तो तुम उसको नहीं ले जा सकते उसकी इच्छा के बिना। और ऐसे ही फिर फिर वो हिंदू बनी। फिर उनके हिंदू व्यक्ति के साथ उनकी शादी भी हुई, उन्हीं की बेटी तबस्सुम भी थी। तो ऐसे ऐसे नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कभी निकालते हैं तो लोग इतना हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी था, ऐसा भी था। तो ओवरऑल आई फील अवेयरनेस इज रियली लो। और अवेयरनेस लो के लिए एक एक तरीके तो आप एजुकेशन को ब्लेम कर सकते हो कि ठीक है सेक्युलर एजुकेशन है, हाँ छुपा के रखते हैं, हाँ एक ही चीज बताते हैं। लेकिन एजुकेशन मतलब स्कूल वगैरह के ऊपर तो नहीं पूरा डिपेंड हुआ जा सकता। एक एक सोसाइटी की बात मतलब देर इज नो इनिशिएटिव एनीवेयर, देर इज नो इनफैक्ट किसी का जानने का मन भी करे तो भी उसके पास आसपास कोई जरिया है ही नहीं जानने के लिए। मतलब इफ somebody has to ये सोचो नोबुर कि अगर somebody is actually interested in let's say the Hindu religion, or somebody is interested in let's say knowing about the history of India, या क्या हुआ था, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है हिंदू साइड पर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर आप किसी को मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट होना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पास के मस्जिद में जाना है और आपका सब सब टेक केयर किया जाएगा। तो क्या है कि देर आर नो इकोसिस्टम्स, देर इज नॉट मच एफर्ट दैट हैज बीन डन बाय द हिंदू सोसाइटी टू प्रोपोगेट देयर ओन आइडियाज एंड बिलीव्स। और इवन लाइक क्या, एक तो ये होता है कि सिर्फ मतलब से इफ हिंदूज क्लेम कि उनका थोड़ा सुपीरियर है, उसके अंदर इनबिल्ट काफी हेट नहीं है, या फिर वो काफी जिसे कहते हैं टॉलरेंट है वगैरह वगैरह, तो व्हाई आर यू नॉट स्प्रेडिंग दीज आइडियाज? हिंदूज में इनफैक्ट देखा जाए तो जो कन्वर्जन करते हैं, जिसको हम शुद्धि मूवमेंट भी कह सकते हैं, उसके उनके तो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब उनके तो आसपास लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सोसाइटी इस तरीके से ब्लेम है कि जो एक्चुअली उनके लिए काम करते हैं उनके ऊपर वो उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती। इनफैक्ट ये पूरे देश का दुर्भाग्य है नुपुर कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो पैसा कमाने वाले और सबसे ज्यादा फेम पाने वाले लोग कौन है? एंटरटेनर्स।
चाहे आप वो स्पोर्ट्स में, मतलब क्रिकेट जैसे गेम्स में देख लीजिए, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, इवन आई वुड इवन कॉल पॉलिटिक्स एज एंटरटेनमेंट लार्जली, मतलब जिस तरीके से इलेक्शंस के अराउंड बिना जो भी होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. सो क्या है कि इस देश में ये जो पैटर्न है कि एंटरटेनर्स आर एक्चुअली जो यहाँ की क्रीम है, तो ये पूरा सोसाइटी का सच हमारे सामने है. तो जब तक एंटरटेनर्स क्रीम रहेंगे तब तक हाल ये होगा ही. ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे आइकॉन्स इस टाइप के लोग क्यों नहीं है? But I also believe that there are certain things where even thought leaders have failed as far as the Hindu community is concerned. Our temple structure has, again, of course, our temples are not free from government control. And if they were, then perhaps the temple structure would have been much stronger to deal with these challenges in their own localities. So there are a lot of areas where our society can पर नुपुर improve. कैसे टेम्पल स्ट्रक्चर कहाँ हेल्प करता है, मुझे बताओ. सी, मैंने नॉर्थ इंडिया के ही टेम्पल्स देखे हैं. ऑनेस्टली आई हैव नॉट बीन टू द साउथ. बट यहाँ पर मंदिर किस तरीके से आपको हेल्प करता है? अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो भी वहां पर आपको नहीं मिलता है. वहां पर कोई ऐसा नहीं है. वहां पर मतलब वहां पर आप पूजा के लिए तो जा सकते हो, वहां पर आप एक्चुअली मन की शांति के लिए भी जा सकते हो, लेकिन देयर इज नो इकोसिस्टम अटैच विद द टेम्पल्स व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू. हाँ, एक टाइम पर अखाड़ा को मुझे जरूर याद है कि मेरे देखते देखते अखाड़ा खत्म हो गए हैं टेम्पल्स में से. बट इवन द टेम्पल स्ट्रक्चर earlier had knowledge centers that could help Hindus, had places where Hindus could come and seek shelter if they were homeless. All of that had happened at one point of time. Unfortunately, with the government control of temples, I don't see that changing anytime soon. But the point is that there are a lot of things that at a societal level can change. I agree that it's unfortunate that most of our icons nationally are entertainers, are from deracinated industries like the Bollywood, which only legitimize persecution, if nothing else. So, what I gather from what you're saying is that society has to internally change who we worship, who we veneer, who we respect, and who we choose to follow. We also have to spread far more awareness than we already do. As far as such cases of love jihad and other hate crimes against Hindus are concerned. In fact, I share your apprehension. There was a banker once who came to my house for some work for my father-in-law, and he asked me what I do, and I told him what I did. And I was working on the Delhi riot. I was working on some report on the Delhi riot. He said, "अच्छा ये क्या है?" तो ऐसे वो जो 2020 में दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, बोले अच्छा ऐसा भी हुआ था. एंड ही स्टेज इन दिल्ली, he is from Delhi, and he had no idea that such a massive riot took place in 2020. He had no idea who Dilbar Degi was. He had no idea who Ankit was. He had just absolutely no idea. That is the kind of a society. लेकिन उसको ये जरूर पता होगा कि अगली कौन सी 5 फिल्में आने वाली हैं, या पिछली फिल्म में इस एक्टर का नाम क्या था. ये सब सबको पता होता है, नहीं? Yeah, absolutely. So awareness बहुत जरूरी है, where we increasingly talk about these cases, we increasingly write about these cases. I know you are doing such a brilliant job, Swati. I mean, your timeline on Twitter, your reports on Swarajya are so eye-opening when you want to understand the kind of crimes that are being perpetrated against Hindu women. And I hope that there are 100 more reporters like you, ताकि और ज्यादा reporting and 100 more portals like Op India. I mean, again, it's not just a mutual admiration society. I'm not trying to do that, but of course, like Op India, what a tremendous database archive you guys have made. मुझे कुछ भी रेफरेंस लेना होता है तो मैं उसी मतलब स्वराज्य भी नहीं देखती ऑनेस्टली, मैं ऑप इंडिया की ही वेबसाइट पर जाकर वो ढूंढती और मुझे 100% वो मिल जाता है. I love the fact how we mutually absolutely love and respect each other. I hope that the entire, or our entire ecosystem can be like that, where we all mutually support each other's work, because I think everybody chooses a lane in our ecosystem and sticks to it. I chose my lane, you chose yours, somebody else has chosen theirs. And if we just stay that course, we stick to that path and keep putting one foot in front of the other, maybe 10 years from now, we will manage to shift the Overton window enough
to reach a space, to reach a place in public discourse where we can actually demand a law like the Kafir hate law. And Yes, hopefully then but we will all, be able to rescue Hindu girls. Yeah. नो एब्सोल्युटली ननुपुर, बस मैं इसमें एक ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि सी आई ऑल्सो डू नॉट वांट टू से कि लाइक समथिंग लाइक अ काफिर एट्रोसिटी एक्ट विल यू नो वही अकेला सोल्यूशन है। कारण ये है कि देखिए आप ये एक तरीके से नेगेटिव अप्रोच भी है, क्योंकि ऑल यू आर सेलिंग इज विक्टिमहुड। मतलब all you are basically saying is that in our own country, in a country where all said and done, overwhelming मतलब numbers हैं, काफी numbers हैं, उसमें इतने victim है कि हमको सिर्फ इसी एक्ट के ऊपर ही चलना है। See, मेरा एक हमेशा से रहा है कि apart from fixing some immediate problems, which I think इसीलिए ये आवश्यक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं जिनका संदेश पहले ही हमारे काफी लीडर्स दे चुके होते हैं हुए हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से काम होना चाहिए और ऐसा करने वालों को बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फेम मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम इज शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि से मेरा मतलब सिर्फ कन्वर्जन, अंधाधुंध कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब शुद्धि मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था तो वो एक तरीके से दलित उत्थान के तरीके से हुआ था कि जब ऐसा होता था कि कुछ जातियों को यज्ञ की, कुछ जातियों को गायत्री मंत्र की अनुमति या अधिकार नहीं मानते थे लोग, तब ऐसी संस्था ने उठकर, आर्य समाज जैसी संस्था ने उठकर और भी संस्थाओं ने उठकर ऐसा कहा कि नहीं हम देंगे इस तरीके से। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का जो रिकन्वर्जन था वो तो 2 साल बाद शुरू हुआ था शुद्धि मूवमेंट के। सो व्हाट आई वांट टू से इज I feel, and I have seen it on ground, that a lot of people from other communities and from our own community who do not know about the good things about the Hindu religion and beliefs, वो उनके पास कोई अभी कोई मतलब वो भी एक मूवमेंट चलनी चाहिए, एक जो पॉजिटिव मूवमेंट होती है। जैसे असगरी बेगम उस जमाने में आई थी जबकि तब कम्युनल पैशन सबसे ज्यादा हाई थे, तो ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक बात माननी पड़ेगी नुपुर कि ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक ऐसा एक फेथ है जिसमें कि हेल का डर दिखाकर सिर्फ आपको नहीं रखा जाता रिलीजन में, इसमें आपको हमेशा दोजक की आग या हमेशा हेल, सिन, इन सब के ये नेगेटिव इमोशंस के साथ बांध कर नहीं रखता, बल्कि दिस इज अबाउट इंडिविजुअल लिबरेशन एंड दिस इज अबाउट मोक्ष एंड दिस इज अबाउट सो मेनी ग्रेट थिंग्स, एज आई सेड, फॉर योर सोल। तो तो मतलब इसमें कोई व्यक्ति क्यों नहीं आना चाहेगा? तो ये कलेक्टिव एक हिंदू कम्युनिटी का वैसे भी फेलियर है कि आप अपने आइडिया में, अगर आप खुद ही मानते हो कि इसमें मतलब कुछ बहुत अच्छा ही है, तो आप किसी को क्यों नहीं ला पा रहे हो? इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के आइडियाज हैं उसमें तो मास लेवल पे इन ड्रोव्स लोगों को आना चाहिए और होना चाहिए अगर ठीक तरीके से प्रोपोगेट किया जाए तो। सो आई बेसिकली कंक्लूड बाय सेइंग दैट यस, वन इज इमीडिएट क्विक फिक्सेस जो कि लॉ के थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लॉ ऑलरेडी बड़े खराब हैं। इनफैक्ट नुपुर, हम फाइट कर रहे हैं, नहीं तो आपको भी पता है कि कम्युनल वायलेंस बिल जैसी एक चीज ड्राफ्ट हो जाती, अब तक आ भी जाता अगर रिजीम कोई दूसरी होती, गवर्नमेंट कोई दूसरी होती, जिसका एक्चुअली उसमें उसमें इनबिल्ट ये है कि इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ नॉन मुस्लिम, मतलब सीधे सीधे शब्दों में मुस्लिम एंड अपर कास्ट हिंदू, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक माइनॉरिटी एक्ट उसमें लग जाता, कम्युनल वायलेंस बिल एक्ट लग जाता, और उसमें हिंदू के ऊपर वैसे ही मतलब ये हो जाता कि आप हो ही परपेट्रेटर। तो देखिए कितना नुकसान होता। तब तो मतलब इतने सारे हमारे सामने दावा के केसेस हैं, इतने सारे काफिर हेट के केसेस हैं, उसमें तो उल्टी पूरा हो जाता काम, है ना? तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों चीजें साथ साथ होने चाहिए। वन ऑफ कोर्स इज लाइक अ क्विक फिक्स इन टर्म्स ऑफ लॉज, अनदर इज जनरल अ मूवमेंट टू स्प्रेड द गुड आइडियाज टू ऑल्सो जो फेंस सिटर्स हैं और जो लोग वहां से भी पीड़ित है ना काफी। ऐसा मैंने कहा कि वहां मुल्ला नेक्सस भी लोगों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि अनलाइक जैसे देखिए हिंदू कुछ भी हो, हिंदू सोसाइटी में जैसे पंडित को अगर आप कितनी भी प्रोपोगेंडा के तहत कितनी भी गालियां दें, लेकिन एक पंडित का क्या परिवारों में कहाँ उसका इंटरफेरेंस होता है? क्या आपके पास के मंदिर के पंडित जी का कोई इंटरफेरेंस आपके घर में होता है? मतलब यूजुअली नहीं होता, राइट? लेकिन मुल्ला नेक्सस का बहुत ज्यादा होता है वहां पे, मतलब पूरी पूरी कॉलोनीज के ऊपर बहुत तेज टाइट होल्ड होता है उनका, उनके बिना पूछे कोई काम नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें मतलब मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, तो साथ साथ उनको लाने का भी काम करना चाहिए। No, I completely agree with you. In fact, a law can solve the problem only after the fact and act as a deterrent. वो crime हो यस, चुका होता है तब law आता है, and then the law can be applicable. However, before the law is committed, of course,
The family structure, the traditional family structure, has to be extremely strong. The administration and the police has to be Community structure sensitized. also has to be strong, right? Community Absolutely, structure has community also been, structure. The yes. administration and the police has to be sensitized to take such cases seriously. And I personally believe that the Hindu community needs to stop insulting and deriding extremely important and extremely brave organizations like VHP and like Bajrang Dal. Because when our daughters are Mm. in trouble, before the police reaches your door, they will, and they will ensure that you're saved by, one way or another. So I think the urban elite needs to realize that when the barbarians come to their doorstep, they will rue the day that they delegitimized organizations like VHP, Bajrang Dal, and other Hindu organizations that actually act as the first line of defense for Hindus. So thank you so much, Swati. It was a fantastic conversation. बहुत कुछ है बातें करने के लिए. So hopefully we can do this again and pick this Absolutely, conversation up Nupur. Thank you so from much where we for left off. this. Yeah. Thanks, Swati. Thanks everyone for listening, and Thanks, hopefully we'll Nupur. be Thanks, back soon everyone. with another episode. Thanks, guys.